वंदामि इच्छामि खमासमणो वंद्युं जावणी जाय निशियाय मथेन वंदामि इचकार सोहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा निर्भो होछो जी स्वामी शाता छे जी बात पाणी नो लाभ देसो जी इच्छामि खमासमणो वंद्युं जावणी जाय निशियाय मथेन वंदामि इच्छा कारेण संधि स भगवान अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमि रायम यंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणे व्या वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए यंकिंची मज्ज वीणाय परिहीणम सुहुमंबा बायरंबा तुभे जाणः अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासमणो वंद्युं जावणी जाय निशियाय मथेन वंदामि इच्छा कारेण संधि स भगवन वायना संधिसाऊ संदेशा इच्छम इच्छा इच्छामि खमासमणो वंद्युं जावणी जाय निशियाय मथेन वंदामि इच्छा कारेण संधि स भगवन वायना लेसु ले इच्छामि खमासमणो वंद्युं जावणी जाय निशियाय मथेन वंदामि इच्छा कारेण भगवान इचकारी भगवान पसाय करी बायना प्रसार कराव सोजी नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवैमं जय जगजीवजो वेयानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियानो वैभव जय सुयाण बबो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महावीरं महामुनिं अमरनराय मह्यम् धर्मतीर्थयरं निवासते तस्मै सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थोड़ा हम पहले कल का जो होमवर्क है वो करना जरूरी है। आत्मा, आत्मा के ऊपर लगने वाले कर्म, आत्मा और आत्मा के गुण, आत्मा अपने गुणों से क्या करता है, गुण का उपयोग हो तब हम क्या करते हैं, और जब कर्म का आवरण आ जाए तब क्या करते हैं। तो कर्म का रोल, अपना कार्य क्या है, ये अब थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए थोड़ा होमवर्क करेंगे। जिसको अच्छा आता हो बोलो, वखारिया बेन बोलशो। साहेब कोशिश करी જોઉં છું। આત્માના મુખ્ય 8 ગુણ છે, અનંત ગુણ છે પણ એમાં મુખ્ય 8 ગુણ છે। અને સૌથી પહેલો ગુણ છે અનંત જ્ઞાન, જેનું કામ છે કે બધું જાણવું। અને પછી બીજો ગુણ છે અનંત દર્શન, જેનું કામ છે બીજું સર્વ વસ્તુને જોવું। પછી ત્રીજો ગુણ છે અનંત ચારિત્ર, એનું કામ છે માનવું અને આચરણમાં મૂકવું। પછીનું ગુણ છે અનંત વીર્ય, અને એનું કામ છે કે જે બી આપણામાં શક્તિ કાર્ય કરવાની શક્તિ હોય એ પ્રમાણે કાર્ય કરવું।
એ પછીનું ગુણ છે આત્મા નિરંજન, નિરાકાર, અરૂપી, અરસી, અગંધી, અવર્ણ્ય અને અસ્પર્શીય છે. અને એનું કામ છે કે અરૂપિત્વપણું આપવું, જેને એમ કે કોઈ શરીર નથી હોતું. પછીનું ગુણ છે અગુરુ લઘુ. એનો મતલબ એમ છે કે આત્મા હાઈ સ્ટેટસ કે લો સ્ટેટસ કે હેવી કે લાઇટ કે બિગ કે સ્મોલ કે એવું કશું જ નથી. આત્મા અને એ તમને એનું કામ નથી ખ્યાલ આવતો. પછીનું છે અવ્યાબાદ સુખ અથવા અનંત સુખ, જેનું કામ છે કે તમને નિર્વિઘ્ન સુખ આપવું, કોન્સ્ટન્ટ સુખમાં રહેવું, કોન્સ્ટન્ટ બ્લિસમાં રહેવું. અને પછીનું છે અક્ષય સ્થિતિ, વિચ મીન્સ કે આત્માને ઇઝ ઇમોર્ટલ એન્ડ સ્ટેઝ ઇન ઇટર્નિટી ફોર એવર. આ બધા આત્માના ગુણો છે. જ્યારે એના ઉપર કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે આપણે જ્યારે અનંત જ્ઞાનની ઉપર કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે આત્માને જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ લાગે છે, જે આપણને સાચું જ્ઞાન નથી આપતું, જાણવા નથી દેતું. જેમ કે આપણે આંખે પાટા બાંધી દીધા હોય એ પ્રમાણે. પછીનો જે ગુણ છે જે અનંત દર્શન, એની પર જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે દર્શનાવર્ણીય કર્મ કહેવાય છે, જે આપણને બધું આઈ એમ લોસ્ટ ધેર સાહેબજી. મેં હોમવર્ક નથી કર્યું, હું કાલના ઓલા ઉપરથી કરું છું. પણ સાચું દર્શન નથી થવા દેતું, સાચું જ્ઞાન નથી થવા દેતું. અચ્છા, જોવા નથી દેતું. હા. પછીનું જે ગુણ છે અનંત ચારિત્ર, એના પર જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે એ મોહનીય કર્મ કહેવાય છે. આ મોહનીય કર્મ આપણને મિથ્યાત્વી બનાવે છે, રોંગ બિલીફ તરફ લઈ જાય છે, માન્યતાઓ ખોટી આપણી થઈ જાય છે, અને એને લીધે થઈને આપણે કશાય ને મિથ્યાત્વ ના કારણે આપણે વધારે ને વધારે કર્મનું આવરણ બાંધી આપણા આત્મા ઉપર કરીએ છીએ. એ પછીનું જે છે અનંત વીર્ય, એની ઉપર જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે આપણને અંતરાય કર્મ લાગે છે, જેના કારણે આપણે દાન વગેરે કે લાભ વગેરેમાં અંતરાય ઊભો થાય છે. એના પછીનું જે કર્મનું આવરણ છે તે નામ કર્મ છે, જેને લીધે થઈને આપણે આ શરીર લેવું પડે છે. અને શરીર યા તો ડિફરન્ટ હોય છે, જેમ કે બધાનું નામકર્મ જુદું જુદું હોય છે, એ પ્રમાણેનું આપણને શરીર મળે છે. મોટું, નાનું, ઊંચું, નીચું, કાળું, ડિફરન્ટ કલર્સ અને એવરીથિંગ. પછીનું જે ગોત્ર કર્મ છે એને લીધે થઈને આપણને પછીનું જે છે અગુરુ લઘુત્વ, જે આનું કર્મ આત્માનું જે ગુણ છે એની પર કર્મનું આવરણ આવે છે ત્યારે આપણને ગોત્ર કર્મ લાગે છે. અને એ ગોત્ર કર્મ આપણને રીચ, પુઅર કે હાઈ સ્ટેટસ, લો તો ઉચ્ચ કુળ કે નીચ કુળ, એવા ટાઈપનો આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. પછીનું જે સુખ છે એમાં આપણને પછીનું જે કર્મ આત્માનો ગુણ છે તે છે અવ્યાબાદ સુખ અથવા અનંત સુખ. અને એના ઉપર જ્યારે કર્મનું આવરણ આવે છે તે વેદનીય કર્મ બને છે. અને તે વેદનીય કર્મ આપણને શાતા અથવા તો અશાતા, એટલે કે પ્લેઝર પ્રોડ્યુસિંગ ઓર પેઇન પ્રોડ્યુસિંગ કાઇન્ડ ઓફ કર્મ લાગે છે. અને એને લીધે થઈને આપણને અશાતાને લીધે થઈને આપણને કોઈ રોગ કે શરીરમાં રોગ ને એવું બધું આપણને એનું ફળ મળે છે, કે એનું કાર્ય એ છે. અક્ષય સ્થિતિ જે 8મો ગુણ છે એને એ આપણને આયુષ્ય કર્મ એટલે આપણને આ શરીરના બંધનમાં જે જકડી રાખે છે આપણા આયુષ્ય માટે થઈને, એ આયુષ્ય કર્મ લાગે છે આપણને. અને જ્યારે આ કર્મનું જ્યારે આવરણ નીકળી જાય છે ત્યારે આપણો આત્મા અક્ષય સ્થિતિ और इटर्नल सिद्धशिलाમાં वास करे છે. लगभग मुझे लगता है कितने सब लोगों को ख्याल में आ गया है. अब सब बोलने जाएंगे तो इतना पॉसिबल भी नहीं है टाइम.
लेकिन आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने हर्षिल जो है, आपको थोड़ा बहुत ख्याल में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ महाराज साहब। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात हम ये ले रहे हैं कि भी अलग अलग प्रकार के जो भी कर्म हैं, अब इन कर्मों के अंदर सबसे बड़ा आधारभूत जो कर्म बन रहा है, और वो कर्म किस प्रकार का कैसा है, जो एक कर्म जो दूसरे सब कर्मों का बंध कराता हो, सबके लिए कारण बनता हो। आज उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक कर्म अब उसके डिवीजन और वो दूसरे सब कर्मों को बंधाने का कारण बन के फिर हमको किस प्रकार की परिस्थिति में कैसे लाता है, वो हमको देखना है थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, ड्रॉ करिए। आप भी डायग्राम बनाएंगे? आप हमें नहीं लाएंगे प्लान के? हाँ, પેલી થાય છે આ થાય એટલે આના ઉપર જ બધી આવે છે, ના ઊંધું પડે છે, એક નથી થતી બીજી ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस रास्ते से कैसे ये आत्मा अंदर कर्म के कारण। अब ये हम आप देखेंगे आप अब ये सब यहाँ से आप देखेंगे अच्छा अब ये सब प्रकार के 18 पाप स्थानक की प्रवृत्ति जो जीव जितने प्रमाण में जिस तरह से करे, तो जैसे जिस पाप स्थानक की प्रवृत्ति की हमने, तो ये कार्मिक एटम्स हमारे अंदर आ रहे, और जैसे कार्बन वर्गना के ये पुद्गल परमाणु, अब ये कार्मिक एटम्स है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आत्मा में बाहर से आने का रास्ता जो है, ये हमारे 18 पाप की प्रवृत्तियों का है। अब इन पाप की प्रवृत्तियों से जो भी जिस तरह से जैसा भी आएगा, अब वो आता ही रहेगा। अब ये पाप स्थान के हैं तो पाप की प्रवृत्ति, अब ये पाप की प्रवृत्ति होती रहेगी और कर्म आते रहेंगे सब। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आएंगे। अब यहाँ आकर के ये 4 डिवीजन में सेट हो रहा है। ये 4 डिवीजन जो है यहाँ के, ये मोहनीय कर्म के डिवीजन, मोहनीय कर्म के 4 डिवीजनों के अंदर आप देख लो, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सबसे पहले जो है इससे मोहनीय कर्म ही बंद होने वाला है। अमोनीय कर्म बंधेगा तो एक एक अंदर डिवीजन होते जाएंगे सर। हम भोजन करते हैं, एक मेडिसिन अगर आपने ली, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाया, चावल खाया,
अब किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर कैल्शियम है, किसके अंदर जो है आयरन कंटेंट्स है, किसके अंदर कैलोरीज है, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, किसके अंदर मिनरल्स है, वो इस हिसाब से सबको शरीर को अलग अलग जा करके अंदर वो डिवीजन हो करके सबको मिलते जाएंगे। अगर खाई हुई वस्तु के अंदर वो तत्व है तो, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले बन रहा है मोहनीय कर्म। किससे बन रहा है साहब? इन पाप प्रवृत्तियों से बन रहा है। 18 ही प्रकार की इन सब पाप प्रवृत्तियों से बनता जा रहा है। अब बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो उस हिसाब से चलेगा। तो ये सभी जीव कर रहे हैं। अब संसार के अंदर 18 पाप की प्रवृत्ति करने वाला कौन नहीं है? सब जीव है, अनंत ही जीव है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय मनुष्य तक, देवी देवताओं तक, नरक के नारकी जीवों तक, सब प्रकार के जीव। अब सबको 18 ही पाप की प्रवृत्ति करनी ही करनी है। राग द्वेष तो करेंगे ही करेंगे, कसाय तो बंधेंगे ही बंधेंगे। अब जिस तरह से जो करेंगे तो ये कार्बन वर्गना तो अंदर आनी। आत्मा के घर में ये जैसे ही आती जाएगी तो ये घड़ा भरता जाएगा। अब जो आएंगे जैसे आएंगे तो घड़ा भरता जाएगा। अब भरता भरता कहाँ पर जमेगा? अब यहाँ से ये कर्म तैयार हुआ, अब ये कर्म बनता गया, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म होता गया। इधर आया ये, इसके साथ में कसाय बनता गया, ये कसाय मोहनीय कर्म बनता गया। ये इधर आया, नो कसाय मोहनीय कर्म बनता गया। अब एक 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 अपनी तरह से जैसे जैसे आते गए कर्म बनते गए। अब जैसे कर्म बनते गए, अब ये अंदर आत्मा के डिवीजन में रहे। ये हो गया पूरा मोहनीय कर्म तैयार हो गया। इधर ये देखिए मिथ्यात्व है, हम 18वां पाप स्थान जो है वो मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। तो ये कार्बन वर्णा के पुद्गल परमाणु सीधे इधर जाए। आपने 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, ये आप जितने प्रमाण में करते रहे तो ये कसाय आया यहाँ पर। ये कसाय आते आते यहाँ से ये कर्म बनता गया। बाहर की क्रिया प्रवृत्ति है, हम क्रिया प्रवृत्ति सतत कर रहे हैं। अब वो भी आप किस तरह से, मन से भी कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, काया से भी कर रहे हैं। अब इसको आप जितने प्रमाण में जिस तरह से करेंगे, ये आप इनका गुणाकार करिए साहब। अब देखेंगे तब आपको लगेगा। अब ये आपने अगर गुणाकार कर दिया, 54। अब ये आप कर्म प्रवृत्ति करते रहेंगे तो गुणाकार हुआ। 18 पाप का हमने मन वचन काया तीनों से गुणाकार किया। कब आप मन से कर रहे हो तो 18 ही 18 मन के, वचन योग से कर रहे हो तो आपके 18 ही 18 भाषा में वचन से बोल करके हो रहे हैं। आप काया से फिजिकली एक्टिविटीज क्रिया प्रवृत्ति करके कर रहे हो तो काय योग से। अब इसका ये गुणाकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ तक हो रहे, यहाँ तक है, वहां तक ये पाप है। और यहाँ आत्मा के साथ आकर के जब बंद हो गया, ये बंद हो गए, अब यहाँ पर ये कर्म बन गया। अब ये कर्म बना है, जब तक बाहर है वहां तक कर्म। ये देखिए जमीन के ऊपर जब तक डस्ट है, मिट्टी है, वहां तक वो डस्ट मिट्टी कहलाएगी। आप आकर के बैठ गए, आपके कपड़े पसीने से गीले हैं और आप बैठ गए, वो मिट्टी या डस्ट वो आपको चिपक गई, लग गई, अब वो आपके साथ कपड़े के साथ जुड़ करके मैल बन जाएगा। ये कार्बन वर्गना बाहर है, वहां तक जो है वो कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणु के एटम्स है। जब वो आकर के आत्म प्रदेशों के अंदर आ गए, आत्मा के साथ चिपक गए, अब वो कर्म बन गए साथ। अब वो कर्म के रूप में आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे। तो ये जिस तरह से कर्म बनते हैं, वो आपने अपने घर के अंदर व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा है, आपने ले करके उसको बनाने की प्रक्रिया थी, तब वो रोटी बन गई। आपने भोजन करके खा ली, तब वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होकर उसमें प्रोटीन कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर सेट हो गया। कैल्शियम के परसेंटेज जो है वो बोन्स में गए, प्रोटीन के हमारे मसल्स में, ब्लड में आए, शरीर की रचना हो गई। वैसे ही यहाँ पर ये है तो कार्मिक एटम ही है,
बाहर है वहां तक कार्मिक एटम्स है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। वही जब इन 18 पाप की प्रवृत्तियों से लेते 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 खींचते हुए आत्मा उसको लेता है, वो लेने की प्रक्रिया का नाम आश्रव। ये जो है, जो लेने की प्रक्रिया है, इसका ये अशुभ आश्रव है। अब ये आश्रव के रूप में जब बन जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई आश्रव क्या, अब ये अंदर आकर के आत्म प्रदेशों के साथ चिपक रहे। अब आत्म प्रदेशों के साथ चिपकने के बाद अब ये कर्म बन गए। अब ये कर्म बन गए, अब कर्म के बाद इसका डिवीजन होता रहेगा। बोलो मंथन भाई, क्या समझ में आया? You are on mute, मंथन भाई. अरे उनको बोलना ही नहीं है, वो जानते हैं, समझदार है, लेकिन उनका ध्यान नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। No, he is saying, but वो mute में है. चलो दक्षा बहन बोल सो, आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए। साहिब जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर हाँ तो आप बोलो कौन सा नहीं आया, तो मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए कि नहीं आ रहा है तो मैं डबल वापिस रिपीट करूँ, समझाऊं। 18 पापस्थान है, उसके मोहनी सबसे पहला मोहनीय कर्म लगता है और एक मोहनीय कर्म सबसे पहला लगे, પછી બધા ધીમે ધીમે કર્મ લાગતા જાય અને એવી રીતે બસ કાર્બન પૂતગલના વર્ગણાથી વધતું જાય ને એવી રીતે આપણને કર્મો લાગતા જાય 18 પાપસ્થાનકથી. बोलिए सुनीता जी, बोलिए आपने क्या समझा है? मध्यवंदामी साहिब जी बाहर जो कार्मान वर्गना है वो हमारी आत्मा जब ये 18 पाप स्थानों में हम प्रवृत्ति करते हैं तो कार्मान वर्गना के पुद्गल हमारे आत्मा के साथ अंदर आते हैं, आत्मा में अंदर आते हैं। जब तक वो बाहर है तब तक वो कार्मान वर्गना है, और जब वो अंदर आते हैं तो वो आश्रव कहलाता है, और जब वो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं तो वो ही कर्म बन जाता है, तो वो मोहनीय कर्म बन गया, तो वो मिथ्या। तो आपका फर्स्ट प्राइज आया, इनका फर्स्ट प्राइज आया। ये है पहली प्रक्रिया, समझ लो। आश्रव, ये अशुभ आश्रव हो रहा है, तो हम 18 ही पाप की प्रवृत्ति करेंगे, ये अशुभ आश्रव है। अब इस तरह से ये होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये भी है कि जब हम कर ही रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं, तो आश्रव होने के बाद बंद होगा। बंद मतलब क्या हो रहा है? आत्मा के प्रदेशों के साथ ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु एक रस होकर चिपक रहे। Just like that, if you are putting the sugar in the tea or milk, that is ashrav. And while you are just putting from the teaspoon, then it will mix up with the milk. So all the crystal form of the sugar, it will just melt in that and mix with the sugar. That is called bandha. So same thing is like here. All these karmic atoms which is outside of soul, and due to all the 18 sinful activities while it is coming inside the soul, then it is mixed with the soul. आत्म प्रदेशों के साथ एक रस मिक्स हो जाता है। अब वो बंध की प्रक्रिया है, then it becomes कर्म। जब तक नहीं है वहां तक पाप है, आश्रव है। अब जब तक आपके बंद हो जाएगा तो कर्म है। अब आप सोच लो, दो में से, इन दो में से आश्रव को रोकना आसान है कि आश्रव होने के बाद बंध को रोकना आसान है? बोलिए प्रवीण जी। आश्रव को रोकना आसान। हाँ, कैसे? कैसे आप आश्रव को रोकना आसान है? तो बस यहीं पर जो है धर्म यहाँ शुरू होता है। अगर यहाँ पर आपने इसको रोका, ये आप नहीं करो, ये आप नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, अगर आप आश्रव को रोकते हैं तो वो धर्म हो गया आपका। संवर धर्म बोलते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन ये दिए, आश्रव निरोधो संवरः।
आश्रव को रोकने वाला ही संवर धर्म कहलाता है। बोलिए सोनाली बहन बोरा, बोलिए रमीला बहन संघवी, योगी बहन बोलो। चलो नहीं बोलना है आपकी मर्जी। अब सवाल ये है कि किस तरह से बाहर से जो आश्रव की प्रोसेस है, अब उसको कैसे रोकना है? रोकना है, आप रुक जाएंगे तो आत्मा में आएंगे ही नहीं। अगर इफ देयर इज ए रेन, इफ इट इज रेनिंग, you will just close your window, the water will not come in your house. आप रोक दोगे तो आपके घर में पानी नहीं आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि अगर आ रहा है तो हम उसको रोकें। वहां पर आत्मा, भगवान महावीर ने पहले ये कहा कि एक बार आत्मा के साथ बंद होने के बाद जो है उसको क्षय करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटर टू स्टॉप इट फर्स्ट। जब आश्रम हो रहे तो वही रोक लो, वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। शॉर्टकट में जल्दी हो जाता है, लेकिन संसार के अंदर लोग पाप प्रवृत्ति भी रोकना नहीं चाहते हैं। अब वो क्यों नहीं रोकना चाहते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं। वो नाम किसका है? तत्व, मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व है कि वो उसको पाप को पाप मानने ही नहीं देता है। क्या लायक नहीं तो बोलता है इसमें क्या हो गया, अगर मैंने झूठ बोला है तो मेरा काम हो रहा है ना, तो गलत क्या है, मेरा काम हो रहा है। मैंने गुस्सा किया है तो दूसरा जो है वो मेरे सिर पर चढ़ेगा। लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। 18 पाप को करते हुए भी वो उसको पाप को पाप मानने को तैयार नहीं है। ये तकलीफ हो रही है। तो सबसे पहले ये मिथ्यात्व जो है वो हमारी बुद्धि को उल्टी मान्यता वाला बनाता है। अब इसमें से ये जो मोहनीय कर्म बन गया, अब इसमें से पार्टनरशिप आके आके अलग अलग कर्मों में आएगी, तब दूसरे कर्मों का बंद हो जाएगा। अब वो दूसरे कर्म बंद करने वाला जो अलग से है, ये हो गया इसके अंदर आपका ज्ञानावर्णीय कर्म, ये हो गया दर्शनावर्णीय कर्म। अब इसी से इसमें आकर के वो बनेगा। ये हो गया आपका अंतराय कर्म, ये हो गया आपका नाम कर्म, ये हो गया गोत्र कर्म, ये हो गया वेदनीय कर्म, और सबसे छोटा है वो आयुष्य कर्म। अब इस तरह से क्या हुआ, एक सबसे बड़ा हो गया पहले मोहनीय कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा कर्म, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हो गए 8 कर्म हो गए। 8 प्रकार के कर्म बाकी के 7 किसमें से बनेंगे? मोहनीय में से आकर के बनेंगे। अब जैसे ही करते करते ये आपका पाप का घड़ा भर रहा है। આપણે ચોખ્ખી ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ જેમ ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમ આખો આ પાપનો ઘડો આપણો ભરાતો જાય છે। अब ये घड़ा भर जाएगा साथ, बढ़ता 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 कितना भरेगा धीरे धीरे। अब यहाँ इसमें आ गए तो ये घड़ा भर गया था, ये ज्ञानावर्णीय कर्म भर जाएगा। इधर आ गए तो ये दर्शनावर्णीय कर्म आपका भर जाएगा। इधर आते हो आपका अंतराय कर्म ये भरता जाएगा। इधर आएंगे आपका नाम कर्म अंदर से भरता जाएगा। ये चालू है, जब तक अंदर जो है ये आना चालू है। इधर ये आपका गोत्र कर्म भर गया। अब ये इस तरह से 8 कर्म हमारे रोज भर रहे हैं, हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है, निरंतर चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। न तो हम रोकने का नाम ले रहे, न हम रोक रहे हैं इसको। तो ये कर्म जब बंद जाएंगे, आत्मा के साथ ये स्टॉक में रहेंगे। आप अगर कल ये पाप की प्रवृत्ति पूरी भी हो जाए, न भी करो, बंद भी कर दो, लेकिन ये पहले ऑलरेडी स्टॉक में आगे भर गया, इसका क्या करेंगे? अब इसकी निगरानी करनी हमको भारी पड़ जाएगी।
આપણે વ્યવહારમાં બોલીએ છે ને પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો। ये जब हम बोलते हैं कि हाँ देखो इसका घड़ा भर गया, अब कभी ना कभी तो फूटेगा। अब पाप का घड़ा भर गया तो कभी ना कभी फूटेगा साहब। अब फूटेगा तब क्या होगा? आपके घर में इधर बिस्तर है, इधर अनाज है, इधर रसोई, इधर खाने पीने का, और पूरा अगर एक बैरल पानी गिर जाए, फट जाए तो क्या होगा? वही हालत हमारी यहाँ पर हो रही है। अब इस तरह से ये जो है बढ़ता जा रहा है। अब कहाँ रोकना है इसको, किसको रोकना है? मान लो आपने बंद कर दिए, चलो हम पाप बंद कर रहे हैं कि पाप की प्रवृत्ति आपकी ये बंद हो जाए। अब यहाँ से आपने ये पर्दा रोक दिया तो ये हो गया आत्मा के साथ जो है ये चिपक करके कर्म बंद है। अब ये आत्मा है हमारी सोच। अब ये है आत्मा, और इस आत्मा के साथ में अभी क्या हुआ? आत्मा के साथ आठों कर्म। हाँ, अभी आप जो पाप कर रहे थे वो छोड़ दी, बंद हो गए। अब हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आत्मा जा रही है शरीर छोड़ करके। अब वो अपने कर्म के हिसाब से जाएगी, तो आत्मा को तो कर्म लेकर जाना है। ये कर्म इसके साथ बंधे हुए हैं, सब कर्म इसके साथ जाने। अब इसके साथ में ये मौनीय कर्म, ये ज्ञानावर्णीय कर्म, ये दर्शनावर्णीय, ये अंतराय, सब कर्म आत्मा के साथ जाएंगे। अब वो दूसरे जन्म में जहां जाए, कहाँ जाएंगे आप प्रवीण जी, आप कहाँ जाएंगे? पारुल बहन तमें क्या जशो? साहिब जी, I'll follow you. अरे कहाँ जाएंगे आप? करना नहीं है, कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद सबको जाना तो है ही। अब जो आपने यहाँ पर आपने ये कर्म बांधा है इधर, अब इसके अंदर ये कर्म जो है एक पर्टिकुलर कर्म आया, ये वाला गति नाम कर्म। ये मैंने स्वस्तिक बनाया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है गति नाम कर्म। अब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, अब ये गति नाम कर्म जो आपका फिक्स हो गया है वो आपको ले जाएगा। अब ये प्रवीण जी जाएंगे स्वर्ग में, हेवन में, सुशील जी जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे। तुम्हारे मंथन भाई क्या जरूरत है? मनुष्य भाव, मनुष्य भाव। चलो तुम्हारे एल्सा बहन क्या जरूरत है? मनुष्य भाव। अब जहाँ जाओगे आप अपनी इच्छा के हिसाब से जाओगे कि बांधे हुए कर्म के हिसाब से जाओगे? बांधे हुए कर्म। हाँ, अब इच्छा आपकी नहीं चलेगी। फिर आप ये मत बोलना कि मेरी इच्छा है, मेरे कोई देवी देवता मेरे को ले जाएंगे, कोई भैरू जी आएंगे, किसी को पद्मावती आएगी, किसी को, कोई आने वाला नहीं, कोई बैठा नहीं है। हर एक जीव, सब जीवों के लिए एक ही है, आप अपने बांधे हुए कर्म के हिसाब से जाने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो इच्छा है, जैसी इच्छा है वैसा कर्म बांधो जाने के लिए। गति में चाहिए तो वैसा कर्म। तो आप ये कहेंगे क्या हमारे हाथ में है? जी हाँ, जैन धर्म, ये महावीर स्वामी कह रहे हैं कि कर्म बांधना आपके हाथ में है, हमारे खुद के हाथ में। दूसरे कोई नहीं कर्म बंधा रहे, कोई भगवान नहीं आएगा ऊपर से, कोई नहीं आएगा कि आपको कर्म बना दे, वैसा कोई है नहीं साथ। आपको खुद को अपने हाथ से बांधना है। तो आपका निर्णय आपके साथ में है, आप निर्णय करो अपना, आप कौन से कर्म बांध रहे हो, आप कैसे कर्म बांध रहे हो, किस प्रकार के कर्म बांध रहे हो, तो फिर उस हिसाब से गति होगी। जब शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये साथ में आयुष्य कर्म आपका है, तो वहां जाने के बाद अब आपको कितने बरस जीना है, यहाँ आपको कितना जीना है, वहां जाने के बाद आपको वहां कितना जीवन जीना है, कितने वर्षों तक का जीना है, ये कर्म बरोबर आपके साथ कर्म का। अब यहाँ से जाओ, आयुष्य यहाँ से बांध करके साथ में लेकर के जाओगे। ये जितना बांधा है वही साथ में आकर के वहां आपको इतने वर्षों तक जीने का चांस देगा। अब अगर बीच में आयुष्य टूटे नहीं, आप मरो नहीं, तो आपको चांस है बरोबर वहां तक जाने के लिए, जीने के लिए। तो ये हमारा निर्णय खुद का है। अब हम जो सब कर्म बांध रहे हैं, ये पहला सबका कारक बन गया है।
बाकी के सातों कर्म को बंधाने वाला कारक जो है मोहनीय कर्म बन चुका है। बोलो भूपेंद्र भाई, खोलो दरवाजा, खोलो, बोलो। नहीं, चलो विपिन भाई बोलिए। આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે જશો કે કર્મ પ્રમાણે જશો? તો કે કર્મ પ્રમાણે જ જશો, આપણી ઈચ્છા ગમે તે હોય તો ના જઈ શકીએ। એટલે આપણી ઈચ્છા એટલે આપણે મોહનીય કર્મ હશે તો એ પ્રમાણે જ જવાનું થશે, એ પ્રમાણે આયુષ્ય કર્મ થશે આપણું। अब मोहनीय कर्म क्या करा है? मोहनीय कर्म बंद होने के बाद वो बाकी सब कर्मों को बंधन के अपना अपना पार्टनरशिप भेजता है। तो वो पार्टनरशिप भेजता है तो उस हिसाब से दूसरे कर्म आपके बनते जाएंगे। आत्म कर्म हमारे हो गए हैं। अब संसार में एक भी कर्म किसी का कम हो ऐसा एक भी जीव नहीं है। आत्म कर्म वाले अनंत जीव है। अभी इस समय निगोद में छोटा सा जीव है, उसके भी 8 कर्म है। पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय के छोटे जीव हैं, उनके भी 8 कर्म है। बेंद्रिय जीव उसके 8 कर्म है। तेंद्रिय जीव के 8 कर्म है। मक्खी मच्छर चौरेंद्रिय जीव है, उनके 8 कर्म है। पशु पक्षी है पंचेंद्रिय जीव, उनके 8 कर्म है। हम मनुष्य, हमारे 8 कर्म है। इस समय हेवनली डिटीज, those who are living in the heaven, that deities, the god and goddesses जो है देवी देवता, उनके 8 कर्म है। नरक के नारकी जीवों के 8 कर्म है। बिना 8 कर्म वाला संसार में एक भी जीव नहीं है। बोलो चंद्रकांत भाई, बोलो। 8 કર્મ વગરના કોઈ પણ જીવ સંસારમાં નથી। बरोबर। अब सभी है तो सब कर्म तो बांध ही रहे अपनी तरह से। सबको कर्म बांधना जरूरी हो गया है, तो बांधते हैं तो बांध रहे हैं, तो बांधते बांधते अब ये कर्म की थ्योरी समझने का, सीखने का सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि हम अपनी तरह से अवेयरनेस में आ जाएं। मुझे कौन सा कर्म नहीं बांधना है, दैट आई कैन स्टॉप टुडे। मुझे ये कर्म नहीं बांधना है, मुझे ये कर्म नहीं बांधना है, मुझे कसाय मोहनीय कर्म नहीं बांधना है, मुझे गोत्र कर्म, अशुभ नीच गोत्र कर्म नहीं बांधना है। तो आप डिसीजन ले सकते हो और आप अपने डिसीजन के हिसाब से डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आप अपनी सुधारना कर सकते हो। સાહેબ જી, આપણે કર્મ જે બંધાય છે એ વધારે ભાવથી બંધાય છે કે ક્રિયાથી બંધાય છે? ભાવની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, હેતુ અને ક્રિયા આ બંને બે સાથે છે। એટલે જે કર્મ બંધાય એની અંદર તમારે જે છે આ પ્રમાણે ચાલવાનું રહે। હવે લખો તમે, સમજ્યા કે નહીં? एक तरफ से ये है आपका हेतु, अब आपके हेतु और क्रिया के साथ में कलो। आप देखो हेतु यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशन यू हैव, एंड क्रिया ये आपकी एक्टिविटीज है। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी मे बी वर्बल एक्टिविटी, मे बी फिजिकल एक्टिविटी, मे बी मेंटल एक्टिविटी, तीनों प्रकार की है। बट व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड दैट, वो अलग है। उसके अंदर आपको, अब ये भी आपके प्लस में साथ में है और ये भी आपके प्लस में साथ में है, तब जाकर के कर्म बनेगा। अब यहाँ पर दूसरे के अंदर है हेतु है लेकिन आप क्रिया नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? नंबर 3, अगर आपका हेतु नहीं है लेकिन आप फिर भी क्रिया करते जा रहे हो। नंबर 4, दोनों ही नहीं है, तब क्या होगा? लख्या पहले लखो तो खरा। आप चारों समझ लो, चारों प्रकार है आपके अंदर। इसमें कर्म बंधाने के निमित्त बन गया। अब यू हैव दैट इंटेंशन इन योर माइंड एंड यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हर फिजिकल, मेंटल या वर्बल। अब जो भी है आप कर रहे हो तो कर्म बंध होगा। अब इनके अंदर आपको ये देखना है
कि अगर दूसरे विभाग के अंदर आप ये सोचो कि ये हेतु आपका अशुभ है और क्रिया आपकी शुभ हो रही है क्या? हेतु भी आपका अशुभ है और क्रिया भी अशुभ हो रही है। हेतु आपका शुभ है और क्रिया आपकी शुभ हो रही है। अब आप इसमें से देखना है आपको, ये डिवीजन और अलग हो गया। એટલે ક્યારેક તમારો હેતુ શુભ હશે તો પુણ્ય બંધાશે, ક્યારેક અશુभ હશે તો પાપ કર્મ બંધાશે। अभी 18 ही पाप स्थानक है तो आपके सभी इंटेंशन गलत है, उल्टे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं साथ, तो हमको पाप कर्म बंधेगा। अगर आपके शुभ है तो आपको, एक माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो इंटेंशन इज गुड, लेकिन उसकी क्रिया तो थप्पड़ मारने की तो है, बच्चा रोएगा तो सही 2 मिनट। तो वहां पर क्या हुआ कि भाई इंटेंशन के हिसाब से है तो उस हिसाब से उसको कर्म का बंध होगा। आपको तो दोनों इंटेंशन में ज्यादा कर्म का बंद होता है एंड क्रिया में कम कर्म का बंद होता है। कम का सवाल नहीं है, इसके कारण हो रहा है ड्यू टू योर इंटेंशन। ये हेतु आप देखिए, समझे कि नहीं? अब कल इंटेंशन आपका है और अगर क्रिया नहीं हुई, अभी वेलिटेड लोग आए और आईडी रख करके गए लेकिन वो फटा नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ तो लोग मरे नहीं, लेकिन उसका तो इंटेंशन यही था ना, तो उसके कारण उसको तो पाप कर्म लग गया। जीव हिंसा प्राणाति पाप का कर्म उसको बंद हो गया। ये महाराज दोनों साहब जी, ये आपने जो केस लिया वो मन वचन काया आपने पहले बताया, उसका स्पेशल केस हुआ ना? हाँ, थैंक मन वचन काया आपकी चल रही है तो इंटेंशन तो कौन नक्की कर रहा है? मन। इंटेंशन के अंदर आपके रागद्वेष आ जाते हैं, क्लेश कसाय आ जाते हैं। चलो भाई, फिजिकल एक्टिविटी तो हुई हमारी, जो भी कोई चीज हम खा रहे हैं तो खा रहे हैं तो शरीर के पीछे आपका इंटेंशन तो बना हुआ है तो खा रहे हैं। खाना तो क्रिया है, बाहर से खाना जो है वो हम लेकर के बॉडी में डाल रहे हैं, वो तो खाने की क्रिया है। इसका क्या हुआ? तो ये हमको इंटेंशन तो हमारे साथ जुड़ा है, तो ये हमको क्रिया प्रवृत्ति कराता है, हम कर रहे हैं। साहेब जी हम अच्छे इंटेंशन से किसी को कुछ कहते हैं पर सामने वाला गलत समझता है तो आप उसका करेक्शन करो, आप उसको समझाने में करेक्शन करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब वो समझता गलत है, आपका अच्छा इंटेंशन है, आप कह भी रहे हो, लेकिन अगर वो उसके लिए गलत लग भी रहा है तो क्लैरिटी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग गलत विचार करते रह जाएंगे फिर। नहीं तो पर हमारा इंटेंशन बैड नहीं है तो हमारे खराब कर्म बंधेंगे। इंटेंशन बैड नहीं है तो आपकी क्रिया भी बैड नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड्स, आप उसको सही शब्द यूज करिए, आप मैनर बदलिए, तरीका बदल दीजिए ताकि उनको गलत लगने का कारण ना बन जाए। अब वो उनके कसाय से सोचेंगे तब जाकर के उनको उसके हिसाब से कर्म का बंध होगा। तो हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, तीसरे तरीके से बदल सकते हैं, चौथे तरीके से बोल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है चेंज करने का। लेकिन उनका गलत तरीका उनके हिसाब से सोचने का है तो वो अपनी तरह से उनको कर्म बंद होगा, ये सबके लिए सोचना है। तो कर्म बंद हो रहा है और हमको बचना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इंटेंशन बदला है तो क्रिया भी बदल दो, बहुत जरूरी है। कई बार अच्छे इंटेंशन से बोलने के बाद भी अगर किसी को बुरा लग रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कीप क्वाइट। अब मौन रहने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं हमारे पास, फिर मौन रह करके शांति से वहां पर आप जो है बचने की कोशिश करो। चलो भाई छोड़ो, बहुत उपदेश देने समझाने के बाद भी इनको उल्टा ही रख रहा है तो मौन रह करके छोड़ दो उस बात को, क्या करेंगे, दूसरा विकल्प नहीं हमारे पास। अब ये हमारी सारी क्रियाएं जो जितनी हो रही है, जिन जिन क्रियाओं से जैसी जैसी प्रवृत्ति करते जाएंगे करते रहे, अब तो संसार तो चलने ही वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमको कहाँ कर्म बांधने से बचना है, ये हमारा पहला विकल्प करना है। हम बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं? कर्म बांधने से बचना चाहते हो कि पाप प्रवृत्ति करने से बचना चाहते हो?
तो पहला लक्ष्य तो वही है कि अगर आप पाप करना ही बंद कर दो तो कर्म बने ही नहीं। पहला फायदा यहाँ हो जाना चाहिए आपको। हमारी प्रवृत्ति अगर चलती रही और हमने अगर उसको बंद नहीं किया तो फिर कर्म बनना रुकने वाला नहीं, ये बात सीधी। फिर तो कर्म बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। अब ये बनते बनते आज इतने भर गए, अब इतने भर गए तो बाकी सब कर्मों को क्या करना। आयुष्य कर्म वो सिर्फ आपको लाइफ स्पान दे रहा है जीवन जीने के लिए। वेदनीय कर्म पेट दुखे, सिर दर्द होवे कि कमर दर्द होवे, इतना ही उसका काम है। नाम कर्म के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दे दिया, स्किन का कलर दे दिया, यश नाम कर्म आदि वो उसका काम। अंतराय कर्म आपके कामों में विघ्न करके रोकने का काम करेगा। इधर दर्शनावर्णीय कर्म आंख नाक कान के लिए, देखना सुनना सुनना जानना उसके लिए। ज्ञानावर्णीय कर्म जानने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है बीच में? रोज कराने वाला हमारा जो है वो कर्म जो है। अब वो मिथ्यात्व के कारण पहले ही दरवाजे बंद कराए कि नहीं मैं मानने ही नहीं दूंगा। इधर जो है कसाय पहले उसको पकड़ रख करके उल्टा ही करने चलता है। नो कसाय अब अपनी प्रकृति बना ली, उसने अपने हिसाब से हंसना रोना आदि पसंद नापसंद उसी में चल रहा है। वेद मोहनीय के अंदर ऑल द सेक्सुअल डिजायर जो है वो उसके अंदर चल रही है। तो ये सब हमारे लिए डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर सबसे ज्यादा आने वाला मोहनीय कर्म है सबके लिए। डे टू डे एक्टिविटी में सबसे ज्यादा हमारे साथ चलने वाला मोहनीय कर्म है, इसकी प्रवृत्ति है। तो सारे 18 पाप इसी के थे, उस हिसाब से बंधे हुए हैं। अब उस हिसाब से ये चल रहा है तो सारी प्रवृत्ति अब इसी को करानी है। तो ये कराते कराते हमको अब कर्म के साथ जोड़ करके प्रवृत्ति कराने में लग जाना। अब ये क्या हुआ, अंदर जो है अभी ये मोहनीय कर्म चारों दिशा के अंदर एक्टिव हो। सभी जीवों के लिए संसार में ये मोहनीय कर्म, अब इसकी टोटल प्रकृति हो गई 28। अब ये सब के लिए एक्टिव बन करके यही प्रवृत्ति करता है। तो मिथ्यात्व मोहनीय ये हमारे 3 तरीके से, इधर कसाय मोहनीय की ब्रांचेस निकल के साथ ये अपनी तरह से चल रहा है। तो इसकी वापिस अलग अलग ये जो है ब्रांचेस निकलती जा रही है। अब इनकी अपने आप में आप देखोगे तो इसकी जो है ये आवृत्ति होते होते ये हो गया 16 प्रकार का हो गया। मेन कसाय जो है वो क्रोध मान माया लोभ। अब ये हो गया चारों अलग से हो गए साथ। तो क्रोध भी 4 प्रकार का हो गया, मान भी 4 प्रकार का, माया भी 4 प्रकार का, ये लोभ भी 4 प्रकार का। अब ऐसे करते करते ये अभी 16 हमारे कसाय वाले हैं। और डे टू डे लाइफ में सबके जीवन के अंदर यही कसाय चलते रहते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी को कम करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है। बस एक्टिविटी हमारी ये हो गई, फिक्स हो गई। अब किसका कौन सा दिन खाली जाता है ये आप डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकली जो है अपनी प्राइवेट डायरी में रोज लिखो तो आपको पता चले, हाँ साहब आज मैंने किसी प्रकार का कोई कसाय नहीं किया है। उस दिन आप प्लस में रह जाओगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ आप सबकी एक्टिविटीज गिन लो साहब। अब ये आप देखोगे
तो ये 6 दिशा के अंदर इसलिए, अब इसके आप देखोगे तो ये 3 है। अब ये हमारी रोज की प्रवृत्तियों के साथ हम जुड़ चुके हैं। अब ये चक्कर हमारा चलता रहता है। ये मोहनीय कर्म का चक्कर आप देखो, ये व्हील जो है इतना फास्ट चलता है, रोज चलता रहता है, रोज हमारी लाइफ का अंग बन चुका है, डे टू डे लाइफ का हमारे लिए अंग बन चुका है। कभी आज हमने मिथ्यात्व मोहनी का आश्रय लिया, फिर क्रोधमान माया लोक कसाई का आश्रय लिया, फिर नो कसाई का आश्रय लिया, फिर ये वेद मोहनीय का जो सेक्सुअल डिजायर्स का है, ये तो ये चक्कर चल ही रहा है। अब 28 में से आप जो है अपनी लिखो, मैंने ये नहीं की, ये की, ये नहीं की, ये की है, ये की है, ये नहीं की है, ये नहीं की, ये की है। आप जिसके अंदर जहां राइट करोगे, 28 में से किसी ने आज 8 बांध दिए, किसी ने 18 बांध दिए, किसी ने 22 बांध दिए, किसी ने 25 बांध दिए, किसी ने 10 ही बांध दिए। सब अपना अपना अगर जो प्रतिदिन का अकाउंट आप लिखने लगोगे, तब आपको पता चलेगा, हाँ साहब मैंने इसमें से कौन सी बांधी है, कौन सी नहीं बांधी। ये हमारा कर्म फिलोसॉफी पढ़ने का जो मेन इंटेंशन है वो ये है। સાહેબ જી 9 કે 9 હોય ને 9 છે ને 9 કસાઈ 9 ને 6 કે 9 ये मिलाओगे तो 9। ओके मिलाओगे तो 9। हाँ तो ये है जनरल लिस्ट हो गया, ये पूरा लिस्ट हो गया। अब ये सबके लिए परमानेंट है, इट इज कॉमन फॉर ऑल। अभी आप स्वर्ग में चले जाओ तो देवी देवताओं की ये 28 है, अब नरक में जाओ नारकी जीवों की 28 है, आप पशु पक्षी में जाओ उनकी 28 है, आप सब जीवों के बारे में, मनुष्य की हमारी अपनी रोज की 28 है। बस आपको अपनी अटेंडेंस के हिसाब से डे टू डे लाइफ की डायरी लिखनी है। आप उसमें 28 का हिसाब करके अंदर से, अब आज संडे है, आज मैंने ये नहीं बांधी, ये बांधी है, ये नहीं बांधी, ये बांधी है। आप जो डिसीजन आपका लो तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये बांधने के बाद अगर हम उसको जानकारी में अवेयरनेस आ जाए तो हम उसकी क्षमापना करते हैं। अगर आप उसकी क्षमापना कर दो, ये हमारा प्रतिक्रमण हो गया। 28 प्रकार की ये प्रवृत्तियां, प्रकृतियां, 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियां। अब इसका आप बरोबर जो है प्रतिक्रमण करना, मतलब इनकी क्षमापना करना। मैंने आज ये किया है, ये गलत किया है, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं, इतना सा आपने सेटिंग कर दे, ये आपकी क्षमापना की क्रिया, ये प्रतिक्रमण हो जाएगा। अब नहीं कर कुछ नहीं होता। साहब जी 9 कसाई जरा फरीथी समझावशो। ये 6 हास्यादि 9 कसाई की है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और ये 3 उसमें से ब्रांच अलग की गई, ये वेद मोहनीय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आपके दिमाग में, मेमोरी में वो सेटिंग है कि 9 है, 9 है, तो ये गलत लगेगा आपको। ये है डिवीजन करके 4 विभाग में अलग किया है, इसलिए यहाँ पर डिवीजन अलग हुआ है कि ये 9 कसाई बोलो, जिसको वेद मोहनीय अलग से बोलो। आप मिला करके बोलो तो 9 बोलो, डिवीजन करके बोलो तो 6 और 3 बोलो। 28 तो होगी, ये 3 है मिथ्यात्व की, 16 है कसाई की, 6 9 कसाई की, 3 वेद मोहनीय की, 28 का डिवीजन इसी तरह से कर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। अब ये हम समझ करके चलते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर जो रेगुलर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। अब हमको यहाँ पर पहले ये ओपन करना है, मिथ्यात्व डे टू डे लाइफ में एवरी डे चल रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, इससे भी कोई नए कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नया कर्म बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब ये हमारा बिल्कुल रास्ता खत्म हो जाएगा तो सम्यक दर्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये जाना चाहिए, यहाँ से ये मिटना चाहिए। मिथ्या तो मोहनी आपका सर्वथा क्षीण हो जाए तब आपका सम्यक दर्शन आए। अब इसमें 16 डिवीजन में से आप ये अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, अनंतानुबंधी, आप कौन सा घटा रहे हो, कितना घटा रहे हो, पूरा धर्म इसी पर है।
पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक आपको सिर्फ एक ही मोहनीय कर्म का क्षय करने का धर्म करना है। बोलो वखारिया जी शू कीधुं? પહેલા ગુણસ્થાનક થી 12મા ગુણસ્થાનક સુધી આપણે મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરવાની કોશિશ કરવાની છે। बस एक धर्म छे। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का क्रमशः धीरे धीरे प्रमाण घटाते जाओ, यही आपका व्यवहार धर्म हुआ। बोलिए भूपेंद्र जी बोलो। नहीं खोले वो दरवाजा नहीं। नो कषाय बोलो नो कषाय जो है इस नो नंबर से 9 या नो कषाय का क्या मतलब है? नो कषाय में नो शब्द का आप इसको नो कषाय का 9 नंबर के साथ संबंध नहीं है, ये हेल्पर है। हेल्पर कषाय है। मूल कषाय को हेल्प करने वाला। यहाँ नो कषाय 9 होता है तो हिंदी का फिगर बन जाता कि आप 9 कषाय बोलते। ये प्रोनाउंसिएशन मैं करता हूँ और स्पेलिंग लिखता हूँ तो नो कषाय ये आगम के अंदर शास्त्रों में भगवान की भाषा के अंदर ही शब्द ऐसा आया है। नो कषाय इट इज हेल्पर फॉर द ओरिजिनल कषाय। ओरिजिनल कषाय कौन से हैं? क्रोधमान माया लोग, ये उसको हेल्प करने वाला है। अब जैसे मान लो कि कोई मेरे को सामने देख करके हंस रहा है तो मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आएगा कि क्या आएगा? गुस्सा आएगा। क्यों आएगा जी। કેમ મને જોઈને આટલા હસો છો કેમ? શું કે હું ગાંડો છું? अब मेरे को देख करके आप इतने हंस रहे हो मतलब क्यों? अरे सामान्य रूप से स्माइलिंग जो है वो परस्पर दोनों पक्ष में हो तो चले, लेकिन आ तो तमे थोड़ी सी बात के अंदर इसके अंदर ये हेल्पर है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब इसके साथ में लगे हुए। अगर मेरे को किसी से देख करके मुझे डर लग रहा है तो मेरे अंदर क्रोध जगेगा, ये है ही उसके लिए साथ में। तो ये हमारे अंदर की प्रक्रिया है। अब ये कसाय तो हमारे होते आ रहे हैं, चल रहे हैं। अब हम इसको रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं, पहले ये देखो। ये आपने 28 का लिस्ट बनाना है, सबको 28 का लिस्ट कंप्लीट पूरा बनाना है। अब उसमें से बना करके रात को सोने के पहले राइट रॉन्ग आप इसमें से लिस्ट बनाएंगे। अब आपने लिस्ट बनाया तो आपके दिन भर की जो है 10 हुई, बाकी की नहीं हुई, तो आप 28 में से 10 में कर्म बांधे हैं, 18 नहीं बांधे आपने। महाराज साहब जी, आपने एक इसमें थोड़ी देर पहले ये बताया कि जैसे पता चला आपको कि आपने पाप प्रक्रिया की है तो इमीडिएटली मिच्छामी दुक्कडम कर लिया उसी टाइम पे, तो फिर ये बंध जो आपने गांठ बताई थी ग्रंथि वो बंधेंगी नहीं? आपने दूध में शक्कर डाल दी और मेहमान ने कह दिया भाई अब बिना शक्कर का पिएंगे, तो आपने ऊपर से दूध निकाल करके उनको मेहमान को पीने के लिए दे दिया। तो उनको डायबिटीज है तो उनको शक्कर नहीं पीनी थी। ऐसे ही आपको समझ में आ गया और आपने तुरंत मिच्छामी दुक्कडम दे दिया, तो आप उसमें से नया कर्म बंद होते 100% नहीं होगा तो 10% में ही आप आ गए। और वो जो दूसरे आदमी ने अगर गांठ बांध ली फिर भी कि नहीं मैं इसने मुझे ऐसे, तो वो उसका जानेगा, बराबर है। और ये मैं उसको बांधेगा। अच्छा। आपने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दिया और आपने क्षमा याचना कर ली और माफी मांग ली, उसके बाद भी सामने वाला कसाई की गांठ बांधता है तो उसको कर्म बंद होगा। लेकिन हमारी भी अपनी एक फर्ज है, कर्तव्य है, हम पहले क्षमा याचना करके उसको अपनी तरह से रखें। इसलिए भगवान ने क्षमा याचना का मंत्र हमको दिया है। हाँ साहब, हम सद्मस्त है, हम संसार में राग द्वेष में है, शायद बाय मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक हो जाए तो आप क्षमा मना कर लो।
हाँ जी तुरंत करना थैंक बहुत जरूरी है। हमको जो है ये रखना नहीं है। आप जैसे ही रखते जाओगे तो वो स्टॉक बढ़ता जाएगा। फिर बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके क्षमापना करके बचने की कोशिश करो। हमारा धर्म, अब धर्म कहाँ है? भगवान जो कह रहे हैं धर्म किसमें है, आप यहाँ से चलिए सर। अब ये पहला नहीं बांधवाना सिंपल थिंग है, कर्म नहीं बांधवाना सिंपल। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, छठा है। अब आप यहाँ से चलते चलते यहाँ आकर के आप वितरागी बनेंगे। यहाँ 13वें गुण स्थान पर आकर के केवली बनेंगे। यहाँ 14वें गुण स्थान और उसके बाद में आप मोक्ष में जाएंगे। तो ये आप समझिए, यहाँ तक 12वां गुण स्थान है। यहाँ तक आपको एक ही मूल्य कर्म का क्षय करना है। ये है मोक्ष मार्ग, आप इसको लिखिए। ये है आत्मा का मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग है ओनली 14 स्टेप्स, 14 गुण स्थानों का ही मोक्ष मार्ग है। और 12 जो है उसमें से गए एक मोहनीय कर्म के लिए। बोलिए अब यहाँ कितने कर्म हैं? 8 कर्म है। 8 कर्म में एक मोहनीय कर्म के लिए 12। और यहाँ पर आपके 12 में से ये एक गया, अब उसके बाद ये 3 जाएंगे। यहाँ पर आपके 4 कर्म हुए और बाकी के 4 कर्म वहां जाएंगे। 14 हाँ, तब हमारे 8 कर्म का क्षय होगा, तो वहां से हम मोक्ष में जाएंगे, वहां हमारा मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपका मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग पर आपका धर्म कौन सा चलेगा? यहाँ पर ये आत्म धर्म चलेगा। अब आत्म धर्म जो आपका चलना है, आत्म धर्म नाम क्यों दिया? आत्मा पर लगे हुए कर्म प्रकृतियों का क्षय करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाए वो आत्म धर्म। बोलो मंथन भाई, बोलो। आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है उसको घटाने के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जाए उसे आत्मधर्म कहते हैं। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आ गया आपका। हाँ? चंद्रकांत भाई बोलो। चलो भूपेंद्र भाई बोलो। 6 भूपेंद्र भाई। આત્માને આપણે કર્મો કાઢી નાખવા લાગે નહીં, એની ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મોને ખપાવવા માટે જે પુરુષાર્થ કરતા જઈએ એનું નામ આત્મધર્મ છે। આત્મા પર આત્માને જે કર્મ આત્માને જે કર્મો સુધારવાના છે એને છે મોક્ષ માર્ગ, આત્મધર્મ કહે છે। अब आपको ये समझना है कि एक मोहनीय कर्म कितना सॉलिड है, कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा है, कितना भारी है कि इसके लिए हमको इतना टाइम 12 गुण स्थान लग रहे हैं। हम वहां तक पहुंचने में इतनी मेहनत करेंगे तब जाकर के इस कर्म का क्षय होगा। अब पूरी धर्म व्यवस्था भगवान ने यहाँ इसके लिए दी, बस वहां तो बाद में तो रिजल्ट आ जाएगा। एक बच्चे को जो है हायर एजुकेशन लेने के लिए प्राइमरी में से वो हायर में आवे, वहां तक उसको 12th स्टैंडर्ड तो पास करना ही पड़ेगा। एसएससी करे, एचएससी करे और वो जो है हायर एजुकेशन करके फिर बाद में अपना डिग्री कोर्स कर सकता है। हमारे लिए भी यही हो गया, पहले तो आत्मा को इतना तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारी मोहनीय कर्म, सबसे पहले मोहनीय कर्म आ रहा है। बाकी के कर्म अभी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय उसकी चिंता बाद में करो, लेकिन पहले आपको, तो पहले यहाँ से आपकी शुरुआत किससे होगी?
मिथ्यात्व बोध। मिथ्यात्व मोह। पर आपका आ रहा है पहले मिथ्यात्व मोह आ रहा है, ये क्यों फर्स्ट स्टेप आ रहा है? तो ये इसलिए आ रहा है कि ये मानने नहीं देता है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? ये सबके दरवाजे बंद कर देता है, कुछ मानने ही नहीं देता है। सही नहीं है। न भगवान को मानना है, न धर्म को मानना है, न गुरु को मानना है, न आत्मा को मानना है, न मोक्ष को मानना है, न कुछ नहीं। ये मानने ही नहीं देता है। पहले ही सबसे पहले दरवाजा यहाँ बंद कर दिया। तो ये अगर दरवाजा यहाँ बंद कर दे तो कोई भी जीव यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा। फिर तो यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा साहब, बिल्कुल आगे। तो ये पहले ही मिथ्यात्व, यहाँ दरवाजा बंद हो गया। अभी सिमंदर स्वामी को क्वेश्चन पूछा जाए कि हे भगवान, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय करके आगे के स्टेप पर आगे निकले हुए कितने, और मिथ्यात्व पर अटके हुए रुके हुए आगे नहीं बढ़े हुए वो कितने? बोलो, पहले आपको प्रश्न समझ में आ रहा है उमेश भाई? आ रहा है महाराज साहब। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है महाराज साहब कि जो मिथ्यात्व रुकने वो कितने हैं, जो मिथ्यात्व से आगे निकल के सिमंदर स्वामी से पूछा जाए वो कितने हैं? हाँ, तो परसेंटेज मतलब, हे भगवान, अभी तक जो मिथ्यात्व से बाहर निकल ही नहीं पाए उनके वो कितने हैं? कितने हैं, और जो मिथ्यात्व से बाहर निकल के आगे बढ़ चुके हैं वो कितने हैं? अब सिमंदर स्वामी का आंसर सुनिए, उत्तर आप जो है, सिमंदर स्वामी कह रहे हैं 99% लोग मिथ्यात्व में रुके हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाए। बहुत बहुत मुश्किल से 1% भी जो है मुश्किल से बाहर निकले और वो जो है आगे बढ़ पाए, वो मोक्ष मार्ग पर आगे निकल रहे हैं। अब 1% भी लाना कहाँ से? तो 99% नहीं रुके हुए हैं। बिल्कुल महाराज साहब। ये है, लोग बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, ये किया वो किया, उससे मिथ्यात्व आपका नष्ट नहीं हुआ। आपने दान दे दिया, $1 करोड़ का दान दे दिया किसी ने। अब कोई $1 करोड़ का दान दे दे तो उससे कोई उसका मिथ्यात्व थोड़ी चला जाएगा। हाँ, वो $1 करोड़ से उसका पुण्य जरूर कमा लेगा, अच्छा पुण्य उपार्जन कर लेगा, वो ठीक है, लेकिन उससे कोई उसका कर्म मिथ्यात्व मोहनीय कर्म क्षय नहीं होगा। आत्मा के गुण स्थान पर वो आगे नहीं बढ़ जाएगा। ये हमको पहले इस कर्म को समझना है। ये ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। पहले ही जो आत्मा को मोक्ष मार्ग पर एक स्टेप आगे नहीं निकलने देगा। साहिब जी, મિથ્યાત્વમાં જે હોય તો ઈ પોઝિશન્સ ચેન્જ થયા રાખે ખરા કે એમાં ને એમાં જ રહે? એમાં ને એમાં જ રહે, લાઈક એમાં ને એમાં રહે। હવે એનું કેટલું સોલિડ મિથ્યાત્વ, કદાચ કોઈનું જે છે પરસેન્ટેજ ઓછા હોય, કોઈનું વધારે સ્ટ્રોંગ મિથ્યાત્વ હોય, એમ દરેકના ઓછા વધતા પણ છે એમાંથી બહાર નીકળે નહીં, એક સ્ટેપ આગળ વધે નહીં અને મોક્ષ માર્ગ પર જઈ ના શકે એવા 99% છે। બોલો, હવે સાહેબજી મત્સ્યવંદામી મિથ્યાત્વ મોહનીયના જે 3 પ્રકૃતિ છે એ સમજાવશો શોર્ટમાં? हाँ हाँ, वही चल रहा है, वही आ रहा है अभी आगे। हम पहले ये समझने की कोशिश करें यहाँ पर कितने प्रतिशत हमारे सिर पर ये चढ़ा हुआ इतना भारी कर्म है। ऐसी स्थिति में ये पहला इसने, अब ये इसके साथ जुड़ गया, ऐसा ये इन दोनों से मिल गया अपनी तरह से, तो ऐसे करके ये अपनी तरह से मिल करके इसका साथ लेकर के स्ट्रांग बन गया। कल जो हमने समझा था वो मैंने आपको दिखाया था यहाँ से। तो ये चारों जो क्रोध मान माया लोग जो हैं, वो इसमें से ये चारों के अंदर से इन्होंने जो नाम दिया है वो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, ये प्रत्याख्यानी, ये संज्वलन। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से इसने लेकर के ये पकड़ लिया, ये पकड़ करके इधर का आधार, इधर से आधार। अब ये दोनों ने मिला करके जो पकड़ करके ये बनाया,
अब ये गांठ हो गई सब। એનું ગલ સમજ લો लिखन छोड़ दो। इधर से क्या लिया अनंतानुबंधी कसाय, इधर से क्या लिया मिथ्यात्व मोनी, ये अनंतानुबंधी कसाय लिया तो इसकी 4 प्रकृति, इधर इसकी 3, ये 7 हो गई। 7 तक। अब ये 3 ले इधर, इधर ये 4, अब ये दोनों मिलाकर के 7 कर्म प्रकृति का जो है ये गांठ बन गई। महाराज साहब ये अलग अलग प्रकार की गांठ होती है कि एक ही टाइप की होती है? एक ही टाइप की है। अच्छा अच्छा। गांठ ये 3 मिली, इधर से 4 मिली अनंतानुबंधी के, अब ये गांठ बन गई आपकी। ये मिथ्यात्व, अब गांठ खोलो तो आगे बढ़ो, गांठ नहीं खोलो तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ से जो आगे नहीं निकल सकते हैं वो ये, आगे निकलना है तो गांठ खोल के निकलना पड़ेगा, नहीं तो कोई विकल्प ही नहीं है। सबके लिए ये, अभी दूसरे सबका तो कोई रोल ही नहीं बीच में आ रहा है। ये अपने लाइफ जीने के लिए जो है दूसरी प्रवृत्तियां जो है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसका। अब ये इधर से धागा आया, ये इधर से आया, अब ये दोनों यहाँ मिल करके इन्होंने गांठ बना दिया। तो ये जो बन गई है इसको यहाँ ग्रंथि नाम दिया। तो ये है यहाँ आपको रोकने वाला। अब ये आपको जाने आगे बढ़ने नहीं दे, तो यहाँ से आपको जप लगा करके यहाँ आना है। ये 4था दरवाजा जो है मोक्ष का प्रवेश द्वार यहाँ है। ये आने के लिए आप आगे बढ़ने नहीं। तो ये बिल्कुल उल्टा चलने के लिए, तो ये क्या है, यहाँ से जो आया है ये है मिथ्यात्व, और ये हो गया अनंतानुबंधी कसाय। अब ये क्या कर रहा है, कल आपको बताया था मैंने, मिथ्यात्व का काम रोल क्या है, वो क्या कर रहा है, और ये अनंतानुबंधी कसाय ये क्या कर रहा है। अब 2 आपको बरोबर समझ में आना चाहिए। बोलो जागृति बेन शाह, अभी आप आए, दरवाजा खोला है, क्या करेगा मिथ्यात्व? साहब जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ चलो बोलो, सोनाली बहन वोरा बोल तो कहीं खबर नहीं पड़ा। बोलो भूपेंद्र भाई, विजय भाई बोलो, शीतल बहन। આપણે મિથ્યાત્વને 4 દિવાલ વચ્ચે પકડી રાખે કશાય અને એનાથી ગાંઠ બંધે છે એટલે मिथ्यात्व का रोल क्या है? उल्टी मान्यता, विपरीत विपरीत मान्यता। इसका काम क्रोध, मान माया, लोभ, पकड़ रखना है, अनंतानुबंधी कसाय, राग द्वेष करवाना, अनंतानुबंधी कसाय, ये जो भी राग और द्वेष, अनंतानुबंधी कसाय ने पकड़ प्रत्याखानी, पकड़ रखा। मिथ्यात्व ने जिस बात में विपरीत किया, उल्टा कर दिया, अब पकड़ के रखने का काम इसका। ओके, ख्याल है? तो इसका नाम महावीर स्वामी की लैंग्वेज में क्या आएगा, अभिनिवेशिक, अभिग्रहिक, ऐसे जो मिथ्यात्व के भेद पड़ेंगे वो लैंग्वेज हम कल समझेंगे। तो इसमें से आपको ये ख्याल आ जाएगा, ये गांठ इसकी बनी हुई है, अंदर ये मिथ्यात्व है, कसाई ने उसको पकड़ करके गांठ बना ली। तो ये हमको पहले समझना है कि हमको खोलना है, तो हमको पहले डायग्नोस भी तो करना पड़ेगा ना। इफ देयर इज ए ग्लैंड ऑफ फाइब्रॉइड्स, और वो कैंसर की गांठ है, तो यू हैव टू डायग्नोस इट फर्स्ट। हम उसका डायग्नोसिस करेंगे, क्या करेंगे, अंदर कैसी गांठ है, किस प्रकार की है, किस तरह की है, अब उसको ओपन करना है। तो डायग्नोसिस करने में हम मिथ्यात्व के प्रकार, मिथ्यात्व के तरीके, कैसा मिथ्यात्व क्या है, वो हम समझेंगे, तब ख्याल आए। फिर उसके बाद आप जो है ये पकड़ छुड़ाने से ये मिथ्यात्व छूटेगा,
या मिथ्यात्व छूटने से ये पकड़ छूट जाएगी? क्या लग रहा है आपको? बोलो एल्सा बेन, शू कहवाय? मिथ्यात्व को ज्ञान से लेके फिर पकड़ छूटेगी, मिथ्यात्व को घटा के। ये इसकी पकड़ में आ गया है तो पहले ये छोड़ना है कि पहले ये छोड़ना? मिथ्यात्व मिथ्यात्व छोड़ना है। पकड़ छोड़ना है। मिथ्यात्व छूटेगा तो पहले मिथ्यात्व छोड़ना है। पकड़ छोड़नी है। पकड़ तोड़नी है। મિથ્યાત્વ સાહેબજી બંને સાથે કરવું પડે, બંને સાથે કરવું પડે। आपका आंसर लिखो, लिख करके भेजो और फिर आपको जो है पेपर तपासेंगे तब मार्क्स मिलेगा, ऐसे नहीं। बोलो जी। બંને સાથે વર્ક આપણે કરીએ તો ગાંઠ ઢીલી થઈ શકે। એક એક કીધું એટલે તમે એક પક્ષ લીધું કે બંને સાથે કરીએ એમ। નહીં, હું એક જ એવું જોઉં છું કે મિથ્યાત્વને આપણે હળવું કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણી ગાંઠ ઓછી થતી જશે। હળવું થાય કઈ રીતે? ગોળ નાખવાથી કે સાકર નાખવાથી? વિપરીત માન્યતા આપણે છે એને આપણે બદલવી પડશે। મિથ્યાત્વની વિપરીત માન્યતા છે એને બદલવી પડશે। જ્ઞાનથી થશે, જ્ઞાનથી જ થશે। સમ્યક જ્ઞાનનું જેમ જેમ ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે એમ એમ મિથ્યાત્વની પકડ ઓછી થતી જશે। અને પછી વિપરીત हाँ, ये पेपर आपको लिखना पड़ेगा आंसर, आप लिख करके भेजो। साहब जी क्वेश्चन फरीथी के जो मिथ्यात्व को घटाने से कसाय की पकड़ ढीली होगी या कसाय की पकड़ ढीली करने से मिथ्यात्व उसमें से निकलेगा, ये हमको समझना है। अब उसकी प्रक्रिया जो है कैसी है, तो पहले हम उसमें से मिथ्यात्व को सीखेंगे। मिथ्यात्व क्या है, इसके प्रकार कैसे हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक बार समझ में आ जाएगा, हमको ख्याल आएगा। बोलिए अभी किसके क्वेश्चन आंसर है, पूछो, बोलो डिस्कशन के अंदर। साहेब जी, સાહેબ જી આપણે આ જે મોક્ષ માર્ગનું આપે જે કહ્યું છે કે 14 ગુણ સ્થાનક જે છે, તો એ બેઝિકલી ગુણ સ્થાનક એટલે આપણા જે આત્મા પરના કર્મ છે એ ઘટવાથી અને આપણા આત્માના કર્મોમાં ગુણનું પ્રકટીકરણ થવાથી મોક્ષ માર્ગ આખો એના ઉપર છે। તો આપણે જૈનિઝમમાં કેમ ક્રિયા ઉપર વધારે મહત્વ આપ્યા કરીએ છે? क्रिया तो करनी पड़ेगी ना, आपका मिथ्यात्व दूर करने के लिए भी क्रिया है, कर्म क्षय क्रिया है, वो आप क्रिया नहीं करोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। नहीं, पर आ तो इंटरनल क्रिया छे ने, आ जे पण छे बधी अंदरनी क्रिया थाय छे ने गुण स्थानक, तो आपणे बाह्य क्रियामां केम अटकी जईए छे? अंदर की क्रिया के लिए बाहर व्यवहार है कि नहीं? पेट में भूख लगती है तो बाहर रसोई बनानी, रोटी सब्जी दाल चावल जरूरी है कि नहीं? तो अंदर के लिए ही बाहर की क्रिया है। गुरु साहब जी, आपने जैसे कहा कि जो कर्म है, जब कर्म आत्मा के साथ लगते हैं तो वो आत्मा के अंदर नहीं जाते, क्योंकि आत्मा तो सॉलिड है, उसमें अंदर जाने की जगह नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि दूध पानी की तरह एक मेक हो जाते हैं। आत्म प्रदेशों पे कर्म जो लगते हैं वो एक मेक हो जाते हैं। तो और जबकि आपने ये भी कहा कि जैसे बादल ढक देते हैं आत्मा को, इस तरह से पीछे तो आत्मा का पूरे अपने गुणों के साथ, पूरे अपने द्रव्य के साथ पूरा का पूरा सॉलिड आत्मा है, लेकिन ऊपर से कर्मों ने ढक दिया, आवरण आया। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि एक मेक हो गए आत्म प्रदेशों के साथ में, तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहती हूँ। ये लोहे का गोला है, हाँ जी। अब ये सॉलिड है कि नहीं है? हाँ जी। अब इसको आप गर्म भट्ठे में रखो तो अग्नि इसमें जाएगी, बरोबर? यहाँ से अगर आपने इसको फ्लेम दी और ये फ्लेम दे करके आपने इसको गर्म किया, तो ये फ्लेम जैसे जैसे अंदर जाते जाते पूरा यहाँ तक सब जगह पर ये पीला बन जाएगा।
ब्लैक बाहर कहाँ देंगे ना, आयरन का, लोहे का ब्लैक होते हुए भी ये जो है एकदम लाल पीला हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब इतना सॉलिड होते हुए भी आग अंदर कैसे गई? और आग जाकर के उसका अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। टोटली उसका कलर चेंज किया। सेम लाइक दैट अब ये आत्मा है और ये आत्मा है, तो आत्मा कैसी है? ये उसके प्रदेशों की रचना है। अब ये आत्मा के प्रदेश है और प्रदेशों की रचना है। अब इन प्रदेशों के अंदर जो है ये बाहर से कार्बन वर्गना के कुल परमाणु आएंगे, ये चारों तरफ से आएंगे। अब ये आकर के आत्मा के साथ एक प्रदेश के साथ ये बंद हो रहा है। ये इस तरह से आकर के आत्मा के प्रदेशों पर ये चिपकते जाए। आत्मा तो असंख्य प्रदेश का पिंड है और ये कार्मिक एटम्स बाहर से आकर के आत्मा पर लगते हैं, तो एक प्रदेश के ऊपर अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, चिपक रहे हैं। इधर देखिए ये व्हाइट कपड़ा है, अभी मैं ब्लैक इंक लगा रहा हूँ, अभी दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, चौथी बार लगाई, पांचवी बार लगाई, छठी बार लगाई, मैंने 1000 बार लगाई, तो एक बॉटल पूरी जो है इसके ऊपर आ जाएगी कि नहीं? तो वैसे ही आत्मा के ऊपर अनंत कार्बन वर्गना आ रही है, ये सब इकट्ठे होकर जम रहे हैं, भर रहे हैं। तो आप कितने कर्म हो गए? आज अगर हम सिमंदर स्वामी को जाकर के पूछें कि भगवान मेरी आत्मा पर कार्बन वर्गना के टोटल परमाणु कितने लगे हुए हैं, तो सिमंदर स्वामी विल गिव इट द आंसर कि आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गना आकर चिपक गए। वो एक रस हो गई है। अब एक रसीकरण के बाद बंद होकर के कर्म की संज्ञा रहती है, होता ही है। महाराज साहब जी, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रदेश और कार्बनिक वर्गना का जो एटम की बात कर रहे हैं, तो ये एटम तो मटेरियल मैटर हो गया, और मैटर अगर आत्मा अरूपी स्पर्शी, उसमें एटम फिजिकल कैसे बॉन्डेज होता है? और अगर वो बॉन्डेज होता भी है तो बॉन्ड आत्मा अपने साथ कैसे ले जाता है? क्योंकि ये तो मैटर और नॉन मैटर का बात हुई ना। હવે વિજયભાઈ અત્યારે જીવતા માણસ છે અને એ બહુ સારા સમજદાર ને બોલનાર છે ને એમને 1 લીટર દારૂ પીવડાવી દીધું હોય તો શું થાય? अभी आप तो कॉन्शियस मैटर है ना, चेतन आत्मा है, और 1 लीटर शराब, ब्रांडी, विस्की कुछ भी पिला दी जाए तो फिर आप कैसे रहेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बिहेवियर रहेगा आपका? तो ज्ञान, आत्मा के अंदर ज्ञान है, लेकिन बाहर का मटेरियलिस्टिक थिंग जो बाहर से आए और वो आपके ऊपर छा गई, तो आपका ज्ञान बिल्कुल उल्टा विपरीत चल जाएगा। तो ये असर जो होती है बरोबर होती है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग है, एटम्स वगैरह, और आत्मा वो भी द्रव्य ही है। वो द्रव्य आकर इसी द्रव्य के ऊपर चिपक करके बंद होकर के एक रस होकर के रह रहा है। जैसे शुगर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स आकर के एटम डिसॉल्व हो जाते हैं, वो डिसॉल्व होकर के आत्मा के ऊपर चिपक करके रह जाते हैं। सेम लाइक वैसी प्रक्रिया यहाँ पर है। हाँ जी महाराज जी, थैंक यू। સાહેબ જી, નો કસાય ને કસાય માટે કેટાલિસ્ટ કહી શકાય? હા, નો કસાય ને કસાય માટે કેટાલિસ્ટ કહી શકાય? હા હા, બરોબર છે, બરોબર કહેવાય. મારે એક ક્વેશ્ચન આત્માનો ઉપર જ છે. ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આપે છે ને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું કે આત્મા કેવું એક કપડાની જેમ વીવ થઈને રાખ્યું છે અને how it અસંખ્ય પ્રદેશ, અને then you had mentioned કે it has a border, જેમ કપડાને border હોય એવી રીતે આત્માની border હોય. कनाडा तो भी, अमेरिका तो भी है। कितने मेंबर्स है टोटल? थोड़े ही है, थोड़े लोग તો पढ़ रहे हैं। આત્મા નાના બોડી કે મોટા બોડીમાં ઈ આખામાં બધી બોર્ડર હોય કે ઈ જીણા જીણા પ્રદેશો હોય એમાં બોર્ડર હોય? How is the border
बॉर्डर ये एक है, इसको पिंड भाव बोलते हैं, बॉर्डर को। अब वो इलास्टिसिटी का गुण है आत्मा में। इलास्टिसिटी में क्या है कि आप इसको फोल्ड करो और फिर आप उसको बॉर्डर करो। अब किसी को हाथी का शरीर मिल गया तो वो बहुत बड़ा एक्सपांड होकर के रहेगा, और नहीं, और किसी को चींटी का शरीर मिल गया तो वो छोटा बंद करके रह जाएगा। वैसे आत्मा के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन का जो गुण है वो स्पेशल गुण है, वो उसके कारण किसी भी छोटे बड़े शरीर में रह जाता है। महाराज साहब जी, ये इसी को छोटे करने की कोई प्रक्रिया होती है? आत्मा का स्पेशल गुण है। हाँ, लेकिन वो जो इलास्टिसिटी से जैसे फैल जाता है, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रक्रिया क्या है? वो खुद करता है, अपने आप में खुद कर लेता है। शरीर जैसा मिलता है, छोटा शरीर मिला तो उसमें रहेगा, बड़ा शरीर मिल गया तो उसमें में, वो दोनों गुण उसके साथ जुड़े हुए, इसलिए वो दोनों में रहता है। थैंक यू। महाराज साहब, ये शरीर कर्मों के हिसाब से मिलता है जी? बिल्कुल, नाम कर्म के हिसाब से शरीर बनाती है आत्मा। Mathanam Mandami Maharaj Sahib, question is, being in sansar, from morning to evening, we do so many karma, like so many hinsa with apkai, vayukai, agnikai, and then all this bhav kasayo, and then we do only atma dharma for few hours. So there is no balance to it. So how we can keep balance? It's like, feels like we are building more karma than we are doing nirjara. So when you are doing the activities of the karma according to the karma, then you are binding with the karma. And when you are doing the opposite of that, you are doing the nijara, then it will be karma honestly. Then karma will be destroyed. Both are kriya. That is religious kriya. If you want to stop it, you can stop it. If you want to do it, you can do it. But your awareness, due to your awareness, if you will stop this, all the karma, sinful activities, then you can save your own self, otherwise not possible. Maharaj Sahib, what are the 3 kinds of mithyatva? अभी वो आगे नेक्स्ट है। मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय, सम्यक तो मोनीय, ये 3 प्रकृति है मिथ्यात्व की। वो हम डिटेल में नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। સાહેબ જી, એક ફીડબેક છે, આ હોમવર્ક ગઈકાલે આપે આપ્યું હતું ને, ઇટ વોઝ વેરી ગુડ, કારણ કે એનાથી ઘણું બધું કોન્સેપ્ટ્સ ક્લિયર થઈ ગયું આજના ટોપિક માટે અને પાસ્ટના ઓલા માટે પણ। એટલે પ્લીઝ keep giving homework. आज का पूरा होमवर्क है, you have to write down the whole thing. First picture diagram was for the Mohaniya karma, due to the Mohaniya karma, other karmas, how it happens. And then second, what is the full form of the Mohaniya karma, the 28 Prakriti. You must write down in detail, then you can understand it very easy. Okay. साहिब जी, जो एक क्वेश्चन पूछूं? मेरा क्वेश्चन ये है, ने कहा कि हम अगर दान धर्म करते हैं, हम कोई पुण्य काम करते हैं, वो एक अकाउंट में है, लेकिन वो पुण्य अपने कर्मों को नहीं, हिसाब का बैलेंस नहीं हो सकता है, ये वो पुण्य कर्म से कषाय कर नहीं हो सकता है बैलेंस। आपको कसाय किया तो कसाय के हिसाब से कर्म बांध देंगे। ये कहते हैं ना कि एक उपवास कर लो तो चाहिए, ये एकादशों को ऐसा होगा। You are breaking, Sheetalben, can you repeat? घनी बार हमें कहा जाता है कि आप अगर एक उपवास करोगे तो आपके इतने सारे कर्म धुल जाएंगे, इतने सारे, मतलब ये वो क्या है? वो भी पुण्य, उपवास करना भी वो पुण्य नहीं, निर्जरा बोलते हैं उसको, कर्म क्षय होता है। जो आपको निर्जरा के लिए, कर्म क्षय के लिए जो रास्ता बताया है, if you are doing in that way, then the karma will destroy. What about people say help others and do good for others, that will be your punya? Tapa nijra, 6 type of external and 6 type of internal, will 12 types of nijra. That is tapa marga.
So due to that practice of nidra, you will remove the karma. What about punya, about help others or donation? What is that? It is a good ashra. Just by the donation, other things you are getting punya. That punya will be keep the happiness. So That is that also goes in the pot, right? It goes in the account of the pot. कर्म है वो चाहिए इसलिए हम उसको रखते हैं. Thank you, Narayana. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणं एषो पंच नमस्कारो सर्वमर्पणासनो मंगलानं च सर्वेशे परमं भवति मंगलम् चत्तारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय बहुत आशीर्वाद. मत